this class economic production quantity model, that is EPQ model, with no shortage of back order. That means shortages are not being allowed in this model. First of all, the assumptions. The assumptions for this model. Demand is constant over time. This is a deterministic model. Demand is known. In this model, we will consider demand as D units per annum. Production rate is constant. That is, replenishment is not instantaneous. In the case of EAQ model, means economic order quantity model, the replacement was instantaneous. At the moment we are placing an order, the orders are replenished or reset instantly. But in this case, it is not so. This is a production model, and the production rate is constant. Okay. Next, production setup cost, because for production machines are required to set or initiate the production. The production setup costs are fixed per production run. I will show you later on. We have taken here CS is the production setup cost per setup, or you can say order also, because production is made against order. Holding cost are constant per unit per year. In this case, we will take C1 as the holding cost per unit per annum. There are no shortages or back orders, which I have already mentioned. Only one product is involved. We are considering this model for one product only. Each production run of length T consists of two parts, T1 and T2. Production run means this is one production run. Starting from here up to this is a production cycle. The total time is T, and it is divided into two parts, T1 and T2. That is T is equal to T1 plus T2. It not necessarily T1 and T2 are equal. The concept is the production will run for the time T1, for the time T1 units, minutes, hour, total. But for the time T2, only consumptions are being done, no production. That is, for the entire cycle, the production is being done this part only. Is it clear? And for the second part, T2 part, only consumption will be made. And total time of the cycle T is equal to T1 plus T2. This is the concept. R is the utilization rate, and K is the production rate. And always K greater than R. That means production rate is more than requirement or utilization rate. And that's why per unit time, the storing of inventory is K minus R. At this rate, the inventory is being piled or stocked. And that's why after time T1, this is the size of the inventory, height of the inventory. Few mathematical relations are mentioned here. This is the graphical presentations. These sides are represented by inventory, and this is the time cycle, and this is size of the inventory, and R is the utilization rate for the entire cycle. Now S is equal to P1 into K minus R. K minus R is the savings or storing per unit time, and P1 is the time for production. That's why this size will take, the size will be S is equal to T1 into K minus R. Is it clear? Per unit time, the saving is this units K minus R, and T1 is the production time. That's why this is the size of the unit. And this part only utilizations are made. That's why this part again S is equal to T2 into R. Time is T2 and rate of consumption or utilization is R. That's why T2 into R is equal to S. This inventory is being used, this part. Finally it has become 0. That's why S is equal to T2 into R. And it is assumed per production run Q units are being produced.
Q units. Q is the lot size, you can say, for each production run. So R is the consumption rate for the entire period, and T is the total cycle. That's why T into R, that is equal to Q, because whatever the units are being produced are being utilized and finally it's reached to 0. That's why Q is equal to T into R, or you can say T is equal to QIR. I think it is clear. Now what is the average inventory? What will be the average inventory? What is the area of this triangle? We know the area of the triangle, the formula is half into base into height. That's why in pencil it is written here half into base T into height S. This is total area for the time T. That means for time T the total inventory is half into T into S. Then what will be the average inventory? If you divide this by T, it will be the average inventory per unit time. That means average inventory will be S divided by 2. Okay? It will be used later on. That's why I have discussed here. So here I have only discussed the assumptions and graphical presentation of the model. Now move to the next page. If Q be the lot size, then you can write T1 into K is equal to Q. ये प्रोडक्शन तो तुम्हारा T1 टाइम पर ही तो हो रहा है ना, प्रोडक्शन रेट इज K, दैट्स इट, टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स विल बी T1 into K and that is Q, the lot size. But just now average inventory I have talked, that will be S divided by 2. Just I have discussed. 2 half and S means this T1 into K minus R. Just I have shown you. S is equal to T1 into K minus R, and T1 into K minus R is equal to half into Q by K. T1 is equal to T1 into K is equal to Q. T1 into K is equal to Q. तो क्या कर रहे हैं, T1 का वैल्यू मैं Q से कन्वर्ट किया, Q by K एंड K minus R. ऐसा क्यों किया आगे बताएंगे, क्योंकि you have to convert this with respect to Q. हमको Q निकालना है. At what quantity the total cost will be minimum. That's why हमने Q में कन्वर्ट किया. ठीक है, तो एवरेज इन्वेंट्री, कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा फॉर द इंटायर पीरियड. इन दिस केस इट इज हियर एवरेज इन्वेंट्री, जो अभी यहाँ लिखा है एवरेज इन्वेंट्री हाफ इंटू Q इंटू 1 माइनस R बाई K. K से डिवाइड करते हैं तो 1 माइनस R बाई K. एवरेज इन्वेंट्री इंटू C1, बिकॉज C1 इज द होल्डिंग कॉस्ट or carrying cost, both are same per unit of time. So this is the inventory carrying cost for the period. और एक कॉस्ट क्या है, सेटअप कॉस्ट. अनदर कॉस्ट इज सेटअप कॉस्ट. तो क्या होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट, और दोनों हम लोग एक ही साथ यूज कर रहे हैं, बिकॉज जब ऑर्डर होता है तभी तो प्रोडक्शन होता है ना, इट्स अगेंस्ट, तो इसलिए सेटअप कॉस्ट. तो हाउ मेनी प्रोडक्शन रन will be required for the period. D is the demand, I have already told you, and Q are the production units in a lot. तो कितना प्रोडक्शन रन हो जाएगा, D by Q. एक बार में Q यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है और D यूनिट्स का जरूरत है, तो टोटल रन D by Q हो जाएगा. तो इतना एक एक रन का लिए सेटअप कॉस्ट है CS. CS इज द सेटअप कॉस्ट. तो टोटल कितना हो जाएगा सेटअप कॉस्ट फॉर द पीरियड, CS इंटू D by Q. D is the demand for the period. In this case 1 year, हम लोग 1 साल लेके चल रहे हैं. और Q is the lot size, एक एक बार में प्रोडक्शन हो रहा है Q. तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन विल बी N will be D by Q. एक बार का लिए सेटअप कॉस्ट इज CS, इसलिए फॉर द एंटायर पीरियड मीन्स एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट यू कैन से CS इंटू D by Q. अब टोटल कॉस्ट क्या हो रहा है फॉर द पीरियड और पर एनम. टोटल कॉस्ट दो तरह का कॉस्ट है ना, एक कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट, और एक है सेटअप कॉस्ट. तो कैरिंग कॉस्ट पहले हम लोग निकल रखे हैं पहले से. दिस इज सेटअप कैरिंग कॉस्ट C1, दिस इज कैरिंग कॉस्ट और दिस इज सेटअप कॉस्ट. दोनों को ऐड कर दिया ऊपर से. तो करना क्या है, यू हैव टू मिनिमाइज दिस कॉस्ट. डिसीजन वेरिएबल क्या है, Q. कितना करके मैं प्रोडक्शन करूं एक एक बार में, so that
टोटल कॉस्ट विल बी मिनिमम। यहाँ तो मेरा कैलकुलस का सहारा लेना पड़ेगा, पूरा बेसिक कैलकुलस है। अगर दूसरे दूसरा स्ट्रीम से प्लीज चेक इट, एकदम फंडामेंटल है शुरू का ही, लेकिन उसका थ्योरी में बता देता हूँ। ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी कैलकुलस का, तो एक नेसेसरी कंडीशन होता है आइदर मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम या मैक्सिमम होने का लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कंडीशन है दैट इज दिस dy dx is equal to 0. in this case y means tc dtc dq is equal to 0। ये आइदर मिनिमम मैक्सिमम, लेकिन आपको मिनिमम चाहिए, तो ये मिनिमम हुआ कि नहीं ये कंफर्म करने के लिए द रूल इज यू हैव टू डिफरेंशिएट सेकेंड टाइम। और एक बार डिफरेंशिएट करने आगे मैं करके दिखाया, अगर फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है तो डेफिनेटली वो मिनिमम हुआ। जो हमने कंडीशन पहले से बना के रखा है इक्वल टू 0, वो कंडीशन फॉर मिनिमम के लिए। अगर ये लेस देन 0 होता तो वो मैक्सिमम के लिए, तो लेकिन मेरा मिनिमम चाहिए वो हो रहा है। तो करना क्या है, फर्स्ट ये डिफरेंशिएट करना है, ये डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट ऑर्डर। तो ये डिफरेंशिएट की, तो डिफरेंशिएट करने से क्यू है, बाकी सारा तो कांस्टेंट है आर के C1, इसलिए एज इट इज रह गया, ये C1 है C1। और क्यू का डिफरेंशिएट करते हैं dt से dq, ये 1 होता है इसलिए इंटू 1। और दिस पार्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा प्लस, ये 1/q है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं चेक करोगे माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्योंकि क्यू नीचे है ऊपर जाने से q -1 साइन नेगेटिव हो जाता है, इट इज इक्वल टू 0। इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया मैंने, साइड चेंज किया ये और क्यू स्क्वायर, तो फाइनली उसी को सिंप्लीफाई करने के बाद ये फॉर्मूला आया। इसी को मैंने दूसरे ढंग से लिखा, स्क्वायर रूट कर दिए क्योंकि दोनों साइड से स्क्वायर किए ना, और ये पॉजिटिव का ले रहा है, नेगेटिव तो क्वांटिटी हो नहीं सकता, दैट्स व्हाई ये पॉजिटिव। 2dcs डिवाइडेड बाई C1 इंटू k डिवाइडेड बाई k माइनस r, ठीक है। और सेकेंड डेरिवेटिव जो है ये करके दिखाया, अगर इसको सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं सी ये ऑल आर कॉन्स्टेंट, दैट्स व्हाई द वैल्यू इज 0। फॉर दिस पार्ट -2 ऊपर जाएगा ना, दैट्स व्हाई माइनस माइनस प्लस हो जाता है 2dcs बाई q। ये थोड़ा देख लेना कैलकुलेशन, इट इज ईजी, हम उस पर पीछे नहीं जा रहे हैं। और ये देखो सारा पॉजिटिव है, d इज पॉजिटिव, cs इज पॉजिटिव, सेटअप कॉस्ट कैन नॉट बी नेगेटिव, डिमांड कैन नॉट बी नेगेटिव, q इज द क्वांटिटी नंबर, दैट्स व्हाई ये टर्म जो है ग्रेटर देन 0। और दैट वी आर कन्फर्म्ड दैट दिस रिलेशन इज इक्वल टू 0, ये मिनिमम के लिए ही हो रहा है, ये इट विल सेटिस्फाई द टोटल कॉस्ट विल बी मिनिमम। ओके, नाउ तो क्यू का वैल्यू निकल गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग ऑप्टिमम प्रोडक्शन क्वांटिटी क्यू फॉर व्हिच द टोटल कॉस्ट विल बी मिनिमम। तो केवल तो ये निकालने से नहीं चलेगा ना, तो कुछ और फॉर्मूला भी हम लोग देख लेते हैं। हाउ मेनी प्रोडक्शन रन्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, इन दिस केस 1 ईयर। तो डी इज द टोटल डिमांड, और एक एक बार में मैं क्यू 0 करके प्रोडक्शन करूंगा, दिस विल बी द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन। तो उसी को थोड़ा सा ये फॉर्मूला पुट कर देने से Q0 का करके देखोगे, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, दिस विल कम। ओके, और एक चीज निकलना है, साइकिल लेंथ, ऑप्टिमम लेंथ ऑफ ईच लॉट साइज प्रोडक्शन रन। एक एक साइकिल में मतलब कितना देर तक प्रोडक्शन चलेगा, T1 हमने 2 पार्ट देखा था, T1 प्लस T2, T1 पूछ रहे हैं कि प्रोडक्शन रन कितना देर तक प्रोडक्शन चलना है, कितना समय में प्रोडक्शन स्टॉप चलाना नहीं है, तो बाकी जो है टोटल टाइम का माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा खाली यूटिलाइजेशन। तो T1 we have already seen above, Q optimum Q0 divided by K, ऊपर में ही है देखो ना, T1 is equal to Q by K, या Q0 जो बेस्ट प्रोडक्शन क्वांटिटी है इसलिए O लिखा गया है, मीन्स ऑप्टिमम मीन्स बेस्ट, ऑप्टिमम मीन्स बेस्ट। तो फॉर्मूला पर डालते हैं, उसको सिंप्लीफाई करने से ये हो जाएगा। तो तुम्हारा प्रॉब्लम में D दिया रहेगा, CS दिया रहेगा, प्रोडक्शन रेट रहेगा, कंजम्पशन रेट रहेगा, तो निकल जाएगा कितना समय, यही भी निकल जाएगा। इस तरह से तुम कैलकुलेट कर सकते हैं ऑप्टिमम ऑर्डर की क्वांटिटी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स और जो रन टाइम और प्रोडक्शन, ठीक है। तो और एक चीज़ मैं देख लेता हूँ, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा ऑप्टिमम लेने के बाद वो भी मैं बता देता हूँ। दिस इज द
फॉर्मूला फॉर बेस्ट मिनिमम प्रोडक्शन इन्वेंट्री कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हम लोग देखे थे, दो कंपोनेंट है ना, ये सेटअप कॉस्ट डी बाई क्यू सी एस, क्यू की जगह मैंने क्यू ओ कर दिया, इज ऑप्टिमम, जो नया मेरा फॉर्मूला से निकल रहा है मैं उसी को पुट करूँगा। तो बाकी तो कांस्टेंट है, डी नोन है, ये नोन है। उसी तरह से इस फॉर्मूले में वहाँ तो केवल क्यू था ना, उसी को मैं ऑप्टिमाइज किया था, कैलकुलस अप्लाई किया था। तो अब जो क्यू का वैल्यू निकल रहा है उसी को यहाँ पुट कर देंगे। बाकी आर के सी वन सब गिवन है, तो भी तुम्हारा टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। और इसी को थोड़ा क्यू का वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके मैंने ये फॉर्मूला बनाया है। आई हैव नॉट शोन द डिटेल कैलकुलेशन, यू कैन चेक इट। यहाँ क्यू जीरो का फॉर्मूला से वैल्यू बैठा के आया है। तो इफ़ यू यूज डायरेक्टली टू दिस फॉर्मूला तो भी तुम्हारा टोटल कॉस्ट निकल जाएगा, मिनिमम है। डी दे दोगे, सी एस, सी वन, ये डिमांड या कंजम्पशन रेट, प्रोडक्शन रेट, इस तरह से टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। तो मैं 4 चीज़ निकाल दिया, ऑप्टिमम ऑर्डरिंग क्वांटिटी निकाल दिया, प्रोडक्शन नंबर्स, रन का कितना संख्या है, नंबर्स पूरी निकाल दिया, प्रोडक्शन साइकिल का टाइम निकाल दिया, और टोटल मिनिमम कॉस्ट क्या होगा ये भी निकाल दिया। ईपीको मॉडल है। अब एक प्रॉब्लम का थ्रू देखते हैं। ये एक प्रॉब्लम मैंने लिया है टू सॉल्व, एग्जाम में ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। सी, द कॉन्ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर 10,000 bearings per day to an automobile manufacturer। जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर तो बियरिंग यूज़ करते हैं ना, तो जो कॉन्ट्रैक्टर जो बियरिंग बनाते हैं, तो ऑर्डर मिला है 10,000 बियरिंग पर डे सप्लाई करना है। दिस इज, यू कैन से डिमांड, यू कैन से इट इज ए कंजम्पशन रेट, यूटिलाइजेशन रेट, जो भी कहो, पर डे। इन दिस प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस किया, जैसा आर होता है, आर इज अ यूटिलाइजेशन रेट, वो है दिस, या डिमांड भी बोल सकता हूँ। व्हेन ही इनिशिएट्स द प्रोडक्शन रन, हिज फैसिलिटी इज कैपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 25,000 बियरिंग्स पर डे। तो प्रोडक्शन रेट क्या हो गया पर डे? 25,000 बियरिंग्स नंबर्स पर डे, दैट इज के, जो हम लोग प्रोडक्शन रेट बोलते हैं। द एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, यहाँ पर क्या बोले थे, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट बियरिंग जो कोई उस प्रॉब्लम में C1 पर बियरिंग इज 2 पैसे, एंड द कॉस्ट टू सेटअप ईच प्रोडक्शन रन इज 18। CS इज 18 और C1 इज 2 पैसे। लेकिन पर बियरिंग ये पर एनम है, होल्डिंग कॉस्ट पर बियरिंग देखो, दी एनुअल मीन्स पर एनम, 1 साल का। लेकिन ये सारा चीज पर डे करके दिया है, डिमांड तुम्हारा पर डे है, प्रोडक्शन रेट पर डे है, इसलिए कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट है उसको भी पर डे में लाना पड़ेगा, तब भी तो आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो कैसे करना है, जो तो पर एनम है 0.02, इसको केवल 365 से डिवाइड कर दो तो पर डे निकल जाएगा। करने के बाद ये पर बियरिंग पर डे, लेकिन नहीं मैं साल भर का करूँगा कैलकुलेशन, यू कैन डू इट, यू कैन ट्राई इट। तो सारा चीज़ को तुमको साल भर में ले जाना पड़ेगा। डिमांड भी तुम्हारा जो एक दिन का है 365 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस तरह से, तब जाकर होगा, तब देयर इज नो इशू। तो मैंने पर डे का ही दिखा रहे हैं। तो ये तुम्हारा ऑप्टिमम ऑर्डरिंग का फॉर्मूला चेक कर, वही फॉर्मूला मैंने लिखा है जो ऊपर में कैलकुलेट करके दिखाया गया है। तो 2 इंटू डी का वैल्यू 10,000 पर डे है, CS है 18 रुपीज़ पर डे, सॉरी पर रन, प्रोडक्शन रन, और C1 है ये पर डे जो ऊपर में कैलकुलेट करके रखा है पर डे। 1 माइनस आर बाई के, आर इज द कंजम्पशन रेट और यूटिलाइजेशन रेट, ये प्रोडक्शन रेट। ये कैलकुलेट करोगे देन यू विल सी 1,04,447 यूनिट्स अप्रॉक्सीमेटली। तो तुम्हारा ऑप्टिमम प्रोडक्शन क्वांटिटी पर रन इतना करके प्रोडक्शन करना है, एक आंसर हो गया। सेकेंड T, टोटल साइकिल टाइम, ये क्या हो जाएगा, साइकिल टाइम हो जाएगा U0 बार R। ये कैसे निकला, पहले n निकालोगे तो उसका बाद 1 साल का बाद है 1, इसी 1/n करके ये साइकिल टाइम इस फॉर्मूला से आ जाएगा। ये थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे, इजी है। पहले n निकालोगे कितना नंबर्स हो रहा है, और उसका बाद जो है T निकल जाएगा कि साल भर का 1 है डिवाइडेड बाई नंबर, वो यही है कि भैया। तो 10.45 डेज। थोड़ा डाउट छोड़ देते हैं, तुम अपने से भी करो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, तो मैं फिर से डिस्कस करके बता दूंगा, कोई इश्यूज़ नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल। और द लेंथ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल क्या है, प्रोडक्शन साइकिल का मतलब जितना देर तक प्रोडक्शन होता है, जो 2 पार्ट था ना, एक तो यूटिलाइजेशन है, ये प्रोडक्शन T1
What is the value of T1? T1 into K is equal to Q0. तो यहाँ ऑप्टिमम ऑर्डरिंग क्वांटिटी इज दिस, प्रोडक्शन क्वांटिटी निकाला होगा डिवाइडेड बाई 25,000, तो देखोगे ये आ जाएगा 4.17। तो 4.17 का मतलब है कि प्रोडक्शन तुम्हारा 4.17 डेज तक चलेगा। ये तो टी इज द टोटल साइकिल, टोटल पीरियड एक रन का, माने टोटल रन कंप्लीट होते हुए, तो इतना दिन तक प्रोडक्शन चलेगा। दिस माइनस दिस करोगे तो उसमें प्रोडक्शन नहीं चलेगा, केवल यूटिलाइजेशन में जो स्टोर हो जाएगा उसको सप्लाई करते चलना है, यूज करना है। तो जैसे एक साइकिल खत्म हो जाएगा फिर दूसरा साइकिल स्टार्ट होगा आफ्टर 10.45 डेज। Thus production cycle starts at an interval of 10.45 days। बोलो ना, ये खत्म हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। एंड प्रोडक्शन कंटिन्यूज अप्रॉक्सीमेटली 4 डेज। ये 4 पॉइंट समथिंग है ना, क्या निकला 4.17 मतलब 4 डेज प्रोडक्शन चलेगा। सो इन ईच साइकिल ए बैच ऑफ, हर साइकिल में 1,04,447 बेयरिंग्स टू बी प्रोड्यूस्ड। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी मॉडल। इसको मैं और रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ, हमने 3 पार्ट में डिस्कस किया। तो फास्ट क्या किया मैंने, पूरा एजम्पशंस, ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस ये सब किया। उसके बाद डिराइवेशन ऑफ फार्मूला किए हैं, कैसा आया। कॉस्ट को मैं 2 पार्ट में बांटा है, एक सेटअप कॉस्ट है और एक कैरिंग कॉस्ट और इन्वेंट्री कॉस्ट। यहाँ शॉर्टेज कॉस्ट आर नॉट कंसिडर्ड इस मॉडल में, उसके लिए मैं अलग से दिखाएंगे दूसरा। और कॉस्ट को मिनिमाइज करके ऑप्टिमम प्रोडक्शन क्वांटिटी मॉडल से प्रोडक्शन क्वांटिटी निकाला गया है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाला है, और ये ऑप्टिमम लेंथ ऑफ ईच लॉट साइज का निकाला, और एक टोटल कॉस्ट भी दिखाया, और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेके कैसे इसको निकालते हैं वो भी दिखाया। दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी मॉडल। आई थिंक यू विल बी बेनिफिटेड बाई दिस। कोई भी डाउट है यू प्लीज राइट टू मी, आई विल बी प्लीज फॉर दैट and I will reply at the earliest possible। कोई ट्रबल नहीं, और जहाँ जरूरत होगा ये ना विल एक्सप्लेन इट। दिस इज फॉर योर बेनिफिट ओनली। ओके, नेक्स्ट मेरा रहेगा शॉर्टेज लेके मॉडल मैं दिखाऊंगा, इसका अगला मॉडल वही रहेगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विथ शॉर्टेज। थैंक यू, तब तक के लिए इंतज़ार करो। थैंक यू।